Sir, it is visible. Okay. So, ninth question. The domain of 2 in bracket 3x minus 1 less than 5, x belongs to capital N is. So, whenever the domain is asked, domain means all possible values of x. Like that you can remember. Domain is all possible values of x. Of course, what I said, values of x, all possible values of x, is not the exact answer of domain. लेकिन अभी हम वेरिएबल x ही यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डोमेन मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x ओनली. तो अभी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. सारे पॉसिबल वैल्यूज जो नेचुरल है वो निकालने हैं. इन शॉर्ट, इसके कौन कौन से वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. सेटिस्फाई करते हैं मतलब x का वो वैल्यू डालने के बाद मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेस देन 5 मिलना चाहिए. राइट हैंड साइड इज 5 और लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 3x माइनस 1 है. अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस 1 less than 5. So now we can multiply by 5 inside bracket. So it will become 2 into 3x minus 2 into 1 less than 5. तो ये आ जाएगा 6x minus 2 less than 5. Now on the left hand side I want only x. I do not want this minus 2 and 6. So can anybody tell me what shall I do next operation? Sir, add 2 on both 6x sides. is equal to 5 plus 2. Very good. Substitute 2 on both sides. We can say it is nothing but adding 2 on both side. जनरली अभी add 2 करने का जरूरत नहीं. अभी आपको समझ में आ गया. -2 को राइट में शिफ्ट किया तो वो +2 हो जाएगा. तो लेफ्ट में ऐड 2 करने का भी जरूरत नहीं है. सो वी कैन से 6x इज लेस देन 7. 5 + 2 7. अभी इस 6 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 6. So when I divide by 6, Divide by positive. we are dividing positive number on both sides. Therefore, inequality will remain same. Less than will remain less than only. This is 9th question, na? 9. Sorry. So x is less than 7 by 6. अभी हमें बोला गया कि x is a natural number also. So natural number which is less than 7 by 6. Which are natural numbers less than 7 by 6? 7 by 6. 7 by 6 is around 1 point something. So only one natural number is there, that is 1. X का वैल्यू आएगा 1. Of course इन्होंने डोमेन पूछा है, इसीलिए उसको हमें सेट के अंदर लिखना पड़ेगा. So that 1 has to be written inside curly bracket, because domain is a I will change the definition, set of all possible values of x. Set of all possible values of x. ये डोमेन का डेफिनेशन एकदम सिंपल शॉर्ट स्वीट डेफिनेशन, ऐसा याद रखो. तो x का वैल्यू 1 है, लेकिन जब आप उसको डोमेन बोलते हो, दैट हैज टू बी अ सेट. उस सेट में एक ही वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 1. So therefore option A is correct. Now in detail, in depth, what do we mean by domain, that we are going to learn in future. Don't worry. Domain, range, period, ये सारे 3-4 टाइप के concepts हैं. Right now just understand this as a definition. Set of all possible values of x is called as domain. Next 7, 8, 9 तीनों डाउट थे Sir, ना? once can you show that slide? Yes. सर वो पेन की साइज है वो थोड़ी सी बढ़ाना. अच्छा ठीक है. Sir, वो जो आपने लास्ट में स्टेप की ना, x belongs to natural number, उसके बाद की वो मुझे समझ में नहीं आई. हाँ देखो, पहला चीज बोला कि x should be less than 7 by 6.
दूसरा बोला गया क्वेश्चन में कि x शुड बी नेचुरल नंबर। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और कॉमा साथ साथ x नेचुरल नंबर ही लेना है। दैट इज द क्वेश्चन। डोमेन फाइंड करते वक्त नेचुरल नंबर ढूंढना है जो 7/6 से स्मॉलर है। दोनों चीजें एक साथ कंपलसरी सेटिस्फाई होने चाहिए। x should be natural number also, x should be less than 7/6 also। ठीक है, तो 7/6 कितना आता है? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1.1 समथिंग आता है। वो कोई लेना देना नहीं हमें, पॉइंट में बस ये चेक करो कितना 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। उससे लेस देन रहना चाहिए x, और x नेचुरल नंबर भी रहना चाहिए। 1.1 से लेस देन नेचुरल नंबर x का एक ही वैल्यू है 1, इसलिए x का एक ही वैल्यू आएगा। लेकिन क्योंकि डोमेन पूछा गया तो डोमेन इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ ऑल वैल्यू x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, इसीलिए उस 1 को हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। अभी सबको समझा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Understood. Sir, I can't understood from first. Okay. ठीक है, नेक्स्ट 7 8 9 तीनों डाउट थे ना रे? Yes, sir. Now let us discuss 7th. 7x greater Yes, than sir. 18 plus x, then value of x is greater than। में डायरेक्टली पूछा गया कि x is greater than which value। इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। सॉल्विंग के हमारे बेसिक रूल्स तो आपको पता ही है। We can add same number on both sides, subtract same on both sides, multiply or divide। Only thing we have to be careful when we are multiplying or dividing by negative number, inequality should change। Less than should become greater than or greater than should become less than। बाकी के सारे केस में adding, subtracting, multiplying, dividing by positive numbers, there is no need to change the inequality। Now the question is 7x greater than 18 plus x। तो we should not get confused कि x तो दोनों साइड है अभी, तो इस ग्रेटर देन को इक्वल टू जैसा ही ट्रीट करो। तो we want x on one side and all numbers on other side। so क्या होगा, तो ये x वाला टर्म हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है। so it will become 7x minus x greater than 18। एक्चुअली स्पीकिंग ये जो x है ये अननोन वेरिएबल है। it could be positive, it could be negative। okay, there is no need to worry whether it is positive or negative because we are subtracting x on both side। जब अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, से फॉर एग्जांपल 6/x लेस देन 7, तो अभी मुझे अगर x एक साइड शिफ्ट करना है तो इस हम बोलेंगे कि x से मल्टीप्लाई करो। ये बिल्कुल गलत ऑपरेशन है, दिस इज रॉन्ग ऑपरेशन। रीजन इज because we do not know whether x is positive or negative, we cannot multiply by a variable। क्योंकि अगर वो पॉजिटिव है तो फिर इनइक्वालिटी लेस देन ही रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन करना पड़ेगा। बट सिंस इट इज वेरिएबल, इट इज अननोन वैल्यू, सो वी कैनॉट से दैट वी शुड मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय वेरिएबल। सो एक रूल मैं बता रहा हूँ इसके बाद, यू कैन multiply and divide by a variable, sorry, you can add and subtract by a variable, but you should not multiply or divide by a variable। by a variable multiplication division कभी नहीं करने का इनइक्वालिटी में। by a variable कांस्टेंट नंबर आप करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका तो रूल आपको पता ही है। So we never multiply or divide by variable because we do not know whether it is positive or negative। लेकिन यहाँ पे इस केस में हमने x को सब्ट्रैक्ट किया दोनों साइड, क्योंकि ये प्लस x है, उसको हमने लेफ्ट को शिफ्ट किया तो वो माइनस x हो गया। और वी कैन से सिंपली सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड x सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये स्टेप मिल जाएगा, 7x minus x 6x greater than 18 डिवाइड बाय पॉजिटिव 6। सो 6 से डिवाइड करने के बाद दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ग्रेटर देन ही रहेगा। 6 6 कैंसल आउट, x इज ग्रेटर देन 3। तो
अभी हमें पूछा गया कि x किससे बड़ा है, x इज ग्रेटर देन ऑप्शन 4 3। समझा सब लोगों को? Yes, sir. यहाँ पे एक रूल मैं लिख रहा हूँ, नेवर मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ वेरिएबल because we do not know whether it is positive or negative. We can add it, we can subtract it, variable. Next, question number 8. Set A is given as इसमें सारे integers है -3 से 3 तक, ठीक है? अरे बाप रे, कौन है ये? श्रद्धा वैद्य। इतना सारा टाइपिंग कैसे कर पा रहे श्रद्धा? लैपटॉप पे बैठी है क्या? Then the solution for x of 2x minus 1 less than 4 in A is अच्छा, सेट A दिया हुआ है हमें. Then the solution for x of this inequality in A is, हम तो पहले ओरिजिनली सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब x के सारे ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे, लेकिन उन्होंने पूछा कि सेट A में से उनमें कौन कौन से वैल्यूज अप्लीकेबल है x के लिए, वही हमने ऑप्शन में लिखने हैं. इन द सॉल्यूशन फॉर x, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले सारे x के वैल्यूज. जैसे 2x minus 1 less than 4 है, तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे. 2x minus 1 less than 4, तो we will have to, बोलो बोलो क्या करना पड़ेगा पहले? Add one on both sides. Minus सर -1 राइट में शिफ्ट. Yes. एड 1 ऑन बोथ साइड बोलो, या -1 को राइट में शिफ्ट करके प्लस करो. 2x less than 5 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा और वी विल गेट आंसर एट s लेस देन 5/2. मतलब लगभग उसको अगर मैंने पॉइंट में लिखा तो 5/2 मतलब 2.5 है. 2.5 से स्मॉलर नंबर चाहिए, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि x के सारे वैल्यूज हमें सेट A से ही उठाने हैं. ओके, तो सेट A में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे दिए हुए हैं. उसमें से हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद ऐसा पता चला कि x तो 2.5 से स्मॉलर ही लेना है. 2.5 से स्मॉलर वाले सारे इसमें से जो भी इंटीजर्स है वो आंसर आएंगे. बोलो क्या आएगा? ऑप्शन 2. हाँ, -3, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2. हाँ, 3 नहीं आएगा उसमें क्योंकि 2.5 से स्मॉलर चाहिए. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर. आसान लग रहा है चैप्टर? यस Yes, सर. sir. Yes, sir. अभी अगर आसान लग रहा है तो 11th लेवल का पढ़ाओ क्या? आप डर जाएंगे वो पढ़ाऊंगा तो. नहीं सर, पढ़ाओ पढ़ाओ, बहुत नहीं easy सर रहता है. मत पढ़ाओ. Yes, sir. पढ़ाओ. सर पिछले साल पढ़ाओ. भी आपने बोला था कि 11th लेवल का हार्ड रहता है, लेकिन बहुत इजी रहता है सर. ठीक है, देखते हैं. ठीक है, 7, 8, 9 के अलावा और कोई डाउट किसी को? 13. Once can you show that slide? Once. देखो, x is less than 2.5 और सेट A में आप देख सकते हैं कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे एलिमेंट्स थे. तो 2.5 से स्मॉलर वाले सारे कौन कौन से आएंगे? -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 यही आएंगे. Sir. हाँ बोलो. सर वो राइट में है क्या? वो रूल लिखा है ना आपने? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि ऑप्शन 4 राइट है क्या? देखा जाए तो वो राइट है बेटा, लेकिन वो फुल्ली राइट नहीं है क्योंकि हमें 2.5 से स्मॉलर नंबर चाहिए. तो 2.5 से स्मॉलर वैल्यूज के लिए एक्चुअली स्पीकिंग 0, 1, 2 भी लेना चाहिए ना. तो Yes, sir. इट इज इनकम्प्लीट आंसर. उसमें से 3 ही वैल्यूज उन्होंने उठाए
Of course, we can say it is partially correct, but the most correct answer is option 2. सारे आंसर सारे वैल्यूज लिखने हैं ना 2.5 से जो स्मॉलर है. ठीक है. सर हमारे ऐप में वो टेस्ट के वक्त पार्शियली करेक्ट रहता है ना, हाँ. तो फिर उसके हमको मार्क मिलते हैं क्या सर, अगर आंसर पार्शियली करेक्ट है तो? इसके सर मैं Partially वॉइस correct. कमिंग और नॉट नहीं अर्नव सुनाई नहीं दिया. सर अर्नव पूछ बोल रहा है, अगर रहा है हमारा कि आंसर आधा करेक्ट है तो हमें उसके मार्क्स मिलते हैं क्या? सर आधे आधे मार्क्स मिलेंगे ना? नहीं, पार्शियल मार्किंग हमने अब ये नहीं किया है, उसको एनेबल नहीं किया है इस टेस्ट में. हाँ, वो वैसा एनेबल कर सकते हैं, लेकिन वो मल्टी करेक्ट में रहता है. मल्टी करेक्ट आंसर टाइप के अगर क्वेश्चन है तो उसमें पार्शियल मार्किंग बहुत अप्लीकेबल है. पार्शियल मार्किंग एनेबल होता है, लेकिन हाँ में फैसिलिटी है वैसा, लेकिन वो हम डिसेबल करके रखते हैं. पार्शियल मार्किंग नहीं देते हम. लेकिन है ऐप में वो भी फैसिलिटी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6, 13 के और 2 डाउट्स हैं, लेते हैं. 6 सर 12 भी. ठीक है. सर 12. ओके ओके. सर 21. मैं क्या सर 18. एक बार ये डाउट के नंबर लिख 19. लेता हूँ. सर 12 13. 12 13. यस. सर आप जो लिख रहे हैं वो दिख रहा नहीं है. वेट आई एम नॉट राइटिंग एट एनीथिंग. सर दीपक सर का पीसी बहुत ही स्लो है, तो दोस्त हाँ सर, पर्टिकुलर. लेकिन अगर उसके बोलो. अगर सर उसके अगर गलत आंसर लिखा होगा तो उसके मार्क्स नहीं आएंगे ना? गलत आंसर लिखा होगा तो मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा राइट है, लेकिन मैंने देते वक्त आंसर की गलत दिया था. ठीक है, तो वो तीनों के ऑप्शन मैंने सर गलत एक बताए. क्वेश्चन का आंसर हाँ. सर एक क्वेश्चन का आंसर 30/19 आ रहा था, लेकिन ऑप्शन. ठीक है ना. सर आपको हर एक स्टूडेंट का हर एक क्वेश्चन पता तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो तीनों क्वेश्चन में मैं सबको बोनस मार्क दे दूंगा. मतलब अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं उसका मार्क का लिस्ट मैं बना रहा हूँ. उस मार्क के लिस्ट में सबको 12 मार्क्स ऐड करके दूंगा. अगर वो गलत है वो तो +5, हर एक क्वेश्चन के लिए +5 ऐड करके दूंगा. ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 12. सर आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है. अच्छा, रेंज तो फुल है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12. आप अच्छे रेंज में बैठो बेटा. ये आखिरी का क्वेश्चन आज का, उसके बाद हम बाकी के डाउट्स कल डिस्कस करेंगे. 5 प्लस इन करली ब्रैकेट 2x प्लस इन ब्रैकेट 4x माइनस 2 करली ब्रैकेट. हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में इनइक्वालिटी नहीं ना, 2 इक्वालिटी है ना? अरे ये तो इक्वेशन ही तो है, ये तो बहुत ही आसान है. फिर ये हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में सॉल्व किया है. एनीवेज, लेट अस वंस अगेन सॉल्व इट. 12th में इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करना है, सिंपल इक्वेशन ही है पिछले चैप्टर जैसा, तो बस उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है. सो 5 प्लस. सर हाँ, सर आप जो स्क्रीन पर लिख रहे हो वो दिख रहा नहीं है. सर दिख रहा है.
सर मुझे भी नहीं दिख रहा। हाँ अभी दिख रहा है सर, अभी दिख रहा है। सर आप भी दिख रहा है। 5 प्लस, मैं अब तक लिख ही नहीं रहा था स्क्रीन 5 प्लस इन करली ब्रैकेट। नहीं सर, आप इतने फास्ट बोल रहे थे, हमें लगा कि आपने लिखा है। तो 12th क्वेश्चन, 5 प्लस इन करली ब्रैकेट 2x प्लस इन ब्रैकेट 4x माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस 2 इन करली ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अभी देखो हमारा गोल क्या रहना चाहिए, ये सारे ब्रैकेट देके कंफ्यूज नहीं होना। आवर गोल शुड बी एक साइड x के टर्म्स, एक साइड नंबर्स, ऐसे भेजने हैं। लेफ्ट में सारे x के टर्म्स रखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले जनरली हम बॉडमास रूल अगर देखते हैं तो श्योरली हमें पहले ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा 4x माइनस 2 वाला, लेकिन इसमें वेरिएबल और सब्ट्रैक्शन ही है और यहाँ वेरिएबल है इसलिए वो सब्ट्रैक्शन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बाद में माइनस 2 है। सो इवन इफ नाउ टू रिमूव ऑल द ब्रैकेट्स दैट इज ऑल राइट, so we can say 5 plus x plus 4x minus 2 is equal to 0, क्योंकि यहाँ पे सब तरफ प्लस ही तो है, तो ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ माइनस है वो एक ही नंबर माइनस हो रहा है। अभी देखो जब आप 4x माइनस 2 ब्रैकेट में है और माइनस 2 ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो 4x माइनस 2 माइनस 2 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, बिकॉज वंस दिस इज ओनली अ नंबर, ब्रैकेट में एक पूरा नंबर है, उस नंबर में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो पूरा नंबर 4x माइनस 2 ऐसा लिखो और उसके बाद माइनस 2 लिखो, ऐसे भी सब्ट्रैक्शन का आंसर करेक्ट ही आएगा। मतलब सिंपली आई हैव रिमूव्ड ऑल द ब्रैकेट्स, आंसर विल नॉट चेंज। तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 2x 6x, और नंबर का कैलकुलेशन 5 माइनस 2 5 माइनस 4 दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 को राइट में शिफ्ट कर दो, वो 0 माइनस 1 होगा, दैट इज 6x इक्वल टू माइनस 1। 6 से डिवाइड करो दोनों साइड, तो 6x अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6, 6 विल गेट कैंसल्ड, x इज इक्वल टू नेगेटिव 1/6। अभी ये इक्वालिटी है इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया, इक्वेशन है। ठीक है सर, हाँ बोलो। सर वहाँ पे सर वो जो आपने थर्ड स्टेप की ना 6x plus 1 equals to 0, हाँ, तो ये 2x plus 4x तो फिर 6x, सर वो मुझे समझ में नहीं आया। 2x plus 4x 6x, और ये 5 minus 2 3 minus 2 1, ये 1 लिखा। ओरली करो ना कैलकुलेशन, 5 minus 2 3 minus 2 लिख लिया, x plus 4x 6x डायरेक्ट लिख लिया। क्लियर? Yes के टर्म्स x के साथ, नंबर्स नंबर के साथ। Okay, with this we will stop today. Remaining doubts we will continue. 13 के onwards हम कर लेंगे।